Are we all a part of the kingdom? Yes! Let's go. We sing righteousness and peace. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the King. Righteousness and peace. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the King. One more time we sing. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's yes, I am a part of the kingdom. 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 Yes, I am a part. Come on, come on, come on, everybody. So at this time, when we sing the chorus, yes, I am a part of the kingdom, we'll look at each other and we'll tell each other, yes, I am a part of the kingdom. Okay, we'll do that. Yes, I am a part of the kingdom. 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 Oh, yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part. Come on, come on, come on, everybody. I don't see the joy. I don't see the joy. I don't see the excitement. Thank you, Pastor Calvin, for preaching this morning. Amen. You know, in the morning, I was singing this song, and then when I came here, you spoke about the joy of the Lord, the joy. The kingdom of God is full of joy. Amen. So I want to see the joy. If the people of the world, they can be full of joy, why not we? Come on. This building is strong enough to hold you even if you jump up to the ceiling. It's very strong, so don't worry. Yes, I am a part of the kingdom. 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 Yes, I am a part of. Yes, I am. Yes, I am a part of the kingdom. 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 Come on, everybody. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the King. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the King. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am
we are a part of the kingdom, but we want to sing it with a little bit high note. This is too soft. Righteousness, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am. Oh, yes, I am a part of the kingdom. Oh, yes, I am. Oh, yes, we are all a part of the kingdom. Come on, come on, come on, everybody. Now I want only the voices to sing, yes, I am a part of the kingdom. We'll all sing as loud as we can, okay? 1, 2, 3. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Are you all a part of the kingdom? Let's sing as loud as we can. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a. Come on, everybody. Come on, everybody. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Oh, yes, I am. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Oh, yes, I am. We all a part of the kingdom. Oh, yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part of the kingdom. Yes, I am a part. Yes, I am. Yes, I am a part. Oh, yes, we all are a part of the kingdom. Oh, yes, I am. Oh, yes, we are. Yes, I am a part. Come on, come on, come on, everybody. Let us all give a clap offering to God. Yes, we are indeed all a part of the kingdom. Yes? Yes, you are a part of the kingdom. Yes, you are a part of the kingdom. Let us point at each and everyone here. Yes, you are a part of the kingdom. 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 Yes, you are. Oh, yes, you are a part. Yes, you are a part of the kingdom. 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 Yes, you are a part. Come on, come on, come on, everybody. Let us all give a clap offering to God. Yes, we are all indeed a part of the kingdom. I am, you are, we are all a part of the kingdom. We thank God, we give God all the glory for that. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. And what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the. What can wash away my sins? Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again?
all the glory. We give you all the honor, Lord, because you deserve it all, Lord Jesus. We just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Praise the Lord. प्रभु की जय हो। Are you ready to listen to God's word? आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? It's so wonderful when we sang that song just now. और जो गीत अभी हमने गाया कितना बढ़िया है वो गीत। The blood of Jesus is so precious. और यीशु मसीह का लहू जो इतना ज़्यादा अनमोल है, It is priceless. उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। Hallelujah. हालेलुया। There is only one kingdom of God, the kingdom that is forever. और एक ही परमेश्वर का राज्य है, वो राज्य जो हमेशा हमेशा रहेगा। And each one of us is a part of the kingdom. और हम में से हर एक जन जो है उस राज्य का हम लोग जो है हिस्सेदार है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. चलिए हम दुआ करें। Loving Heavenly Father, once again we thank you. प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। We commit this time to your hands. प्रभु इस समय को प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं। And as we partake from your table today, प्रभु आज के दिन जबकि प्रभु परमेश्वर प्रभु भोज में हम आ रहे हैं, all the blessing that comes through sharing from this meal, let it flow to our lives. प्रभु हर एक आशीष जो प्रभु परमेश्वर तेरे प्रभु भोज में से है प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में उतर आए। Even as we break bread, you will open our eyes more to know you. प्रभु परमेश्वर जब हम रोटी को जब हम तोड़ेंगे प्रभु परमेश्वर प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को और ज्यादा खोलना, That we will always enjoy your presence, Lord. ताकि हमेशा प्रभु परमेश्वर तेरे उपस्थिति को तेरे उपस्थिति को प्रभु हम एंजॉय कर सके, आनंद ले सके। We just commit once again this time to your hands. प्रभु इस समय को प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, In Jesus' name, यीशु के नाम से, amen. आमीन। So before we go to the table of the Lord, परमेश्वर के प्रभु भोज में जाने से पहले it's always a good time to share the word of God. अच्छी बात है कि इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को हम सुने। It's very important for us to understand what is the church, what the church is to be. तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझने के लिए कि हम चर्च जो है कैसे होगा। When Jesus proclaimed something about the church, और जिस समय यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया है कलीसिया के बारे में, it's always a very powerful, meaningful word. और हम जानते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका बहुत ज़्यादा मतलब भी है। He says, "On this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." और यीशु ने कहा मैं चट्टान के ऊपर अपने घर बनाऊंगा, नरक का फाकड़ इसमें प्रबल नहीं कर पाएगा। It's a church that is going to fight spiritual warfare and to be victorious. और कलीसिया जो उस कलीसिया जो आत्मिक योद्धा है, इसी तरह आत्मिक युद्ध को लड़ना है। Hallelujah. हालेलुया। And when he talk about a church, he always talk about a one church, और जब यीशु मसीह कलीसिया के बारे में कहता वो एक ही कलीसिया के बारे में कहता है। a united church. और सारा विश्व में जो कलीसिया फैला हुआ जो एक कलीसिया, It is his body and he is the head. तो यीशु मसीह का देह के विषय में और देह का जो सर यीशु है। And the church, the third one is the church is to be a glorious church. और वो कलीसिया ऐसा कलीसिया होगा जो पूरा महिमामय कलीसिया, महिमा से भरा हुआ A कलीसिया, church without spot or wrinkle. और कलीसिया जो बिना दाग का हो। Hallelujah. हालेलुया। We may say we have many spots and wrinkles. है ना, कहता हम देख सकते हैं हमारे जीवन में बहुत सारा दाग है, बहुत सारा कमी घटिया है, But he is able लेकिन वो काबिल हैं to make that glorious church. वो महिमा से भरा हुआ कलीसिया बनाने के लिए। He is washing us by the water of the word. और यीशु मसीह जो है कहता हमें धोता है उसका परमेश्वर का वचन के द्वारा। He is perfecting us till the last day. वो कहता उस अंतिम दिन तक हमें क्या शुद्धता की ओर ले चल रहा है, And we will be ready for his coming. और हम तैयार है उसके आने का, उसका आगमन के लिए। Are you excited about that? क्या आप उसके लिए आप उत्तेजित और खुश हो? We are part of that kingdom that is forever. हम उसका कहता है राज्य का जो है कि हिस्सेदार है जो आने वाला और हमेशा हमेशा बना रहेगा। Today I want to share about the second one. तो आज जो है दूसरे विषय में बात करूंगा, That the church of Jesus Christ is supposed to be a united church. और यीशु मसीह का कलीसिया जो है पूरा एकता होना चाहिए उस कलीसिया में। Okay, let's turn with me to Psalm 133. चलिए मेरे साथ देखते हैं भजन संहिता 133। It's a psalm that is very commonly read in the church.
वो कहता है काफी बार कहता है हम कलीसिया में इस वचन को हम पढ़ते हैं। Psalm 133. भजन संहिता 133। Yeah, you can project the screen in the NIV. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. हमें कहता है देखो ये क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहे। Do you feel good when you are here together? क्या आपको अच्छा लग रहा है जो कि हम एक सब लोग इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं? You know, I feel so good. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। And when I look at apostles, I look at everyone, I feel so good. जब मैं अपोस्तल को देखता, हम सभी को देखते मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है It gives me so much pleasure. और मुझे इतना ज्यादा आनंद देता है। Bible says how good and pleasant it is when brothers live together in unity. बाइबल कहता है कितनी भली बात है, मनहर बात है कि जब भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। We are supposed to live together in unity. इसी कारण हमें चाहिए कि हम एकता में रहें, मिलकर रहें। It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes. ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छड़ तक पहुंच गया। It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. ये उस हिमन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है और यहोवा ने तो यही बातें कही है। When we are dwelling together in unity, there is freshness. जब हम इकट्ठा रहते हैं, एकता में रहते हैं, हमें कहता हम अपने आप को तरोताजा पाते हैं हम। There is anointing. हमें अभिषेक है। And there is life and blessing. हमें जीवन है और आशीष भी है। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, perhaps we think about this psalm maybe in the way that we see about the nation of Israel. और जबकि हम भजन संगीता को देखते हैं लगे हमें ऐसे दिखाई पड़ता कि इजराइल की देश की ओर। But let me tell you, in Acts 7:38, मैं आपसे कहना चाहता हूं पवित्र किताब 7 का 38 the में, nation of Israel is called the church in the wilderness. और कहता है कि इजराइल जो है कहता है जंगल की कलीसिया के विषय में दर्शाता है। So this one is a shadow of the church. ये जो कहता है एक जो है परछाई है कलीसिया के विषय में। This is in the old covenant, in the priesthood according to Aaron. कहता है कि हारून के समय में जो कलीसिया जो हारून जो एक याजक था उस समय का कलीसिया के विषय में दर्शाता है। In spite of the so many up and down of that nation, of the church in the wilderness. वो कहता है उस जंगल में जो कलीसिया था उस कलीसिया में बहुत सारा कहता है कि कभी ऊपर कभी नीचे कभी है ना गड़बड़ी भी बहुत सारा हुआ है। There used to be great times of joy and blessing when they were dwelling together in unity. और कहता है उस समय बहुत ज्यादा वो आनंदित भी होते थे जब कभी वो लोग एकत्रित होते या इकट्ठा रहते हैं। You know, when they came out from Egypt, जिस समय वो कहता है मिस्र देश से बाहर आए, when they crossed the Red Sea, जिस समय लाल सागर को पार किए, when they crossed the Jordan, जिस समय यरदन नदी को पार किए, when they entered Canaan's land, और जिस समय कहता कनान देश में प्रवेश किया, when they destroyed Jericho, जिस समय के यरीको नगर को उन्होंने नष्ट किया, even during the time of David, और दाऊद के समय में when they were preparing to build the temple, जिस समय वो तैयार कर रहे थे कि परमेश्वर के लिए एक भवन को तैयार करें, they were collecting the gifts from everyone. तो सभी से कहता है कि कुछ कहता है लोग ले रहे थे दान के रूप में, David was so full of joy और दाऊद इतना ज्यादा आनंदित था, because they are all doing together in unity. और सभी लोग क्योंकि मिलकर काम कर रहे थे, They वो were doing all that in unity. क्योंकि एकता में होकर कर रहे थे। David, the man of God after God's own heart, दाऊद जो है परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति था, he could not make the temple, वो कहता है परमेश्वर के लिए भवन को नहीं बना पाया, but God used him to bring the children of Israel together in unity. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया ताकि इजराइल के संतानों को इकट्ठा करने के लिए, एकता में लाने के You लिए, know, the gifts from everyone is so much. और सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के दिया है। Gold and silver was overflowing in Jerusalem, उस समय यरूशलेम में सोना चांदी जो बहुतायत से देने लगा लोग, and it pleased David so much. और दाऊद को इतना ज्यादा अच्छा लगा, And he really enjoyed to talk with God. और उसको इतना अच्छा लगा कि वो परमेश्वर के साथ बातें करने में उसको और मजा आने लगा। And the temple was built
during the time of Solomon. और सोलोमन के समय में कहता है परमेश्वर के लिए भवन को तैयार किया गया And the anointing came, the glory cloud came. Even the priests were not able to stand. और कहता है परमेश्वर का महिमा आया, परमेश्वर का इतना ज्यादा महिमा से भर चुका था, उपस्थिति भर चुका था कि कहता है कि याजक लोग भी उस जगह पे खड़ा नहीं हो पा रहे थे। My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, this is in the old covenant. ये जो कहता है पुराना नियम का वाचा के This समय है, is in the priesthood of Aaron. ये कहता है याजक कहता है हारून के याजक पद के समय था। But this psalm is also a shadow which point towards the reality. और ये जो कहता है भजन लिखा गया 133 में, ये जो है ये जो पूरा हारून के समय जो कि एक परछाई था, अभी के विषय में जो आने वाला के विषय में कहता है, महिमा से भरा हुआ कलीसिया के विषय में कहता है। Not under the Aaronic priesthood, आरोन के समय का, आरोन याजक के समय का नहीं, but in the priesthood of Jesus. लेकिन यीशु मसीह याजक, यीशु मसीह के याजक पद के समय में सबसे बड़ा याजक। If in the order of Melchizedek. वो कहता है मलकी सदीक के समय क्या? Hallelujah. हालेलुया। Yesterday, Pastor Roy Thomas Matthew. I'm trying to learn by heart. Roy Thomas Matthew. I try to say RTM. Yeah, he was telling about Abraham giving tithes to Melchizedek. और जो कि पास्टर काल हर कहता है, पास्टर रॉय जो काल ये कह रहे थे, वो मलकीसदिक जो कहता है कि अब्राहम जो मलकीसदिक को दसवंश दिया है। That was about 500 years before the law. कहता है 500 साल पहले जो व्यवस्था आने से पहले God gave the picture of the priesthood. उस जगह में हम देखते हैं कहता है याजक पद का एक मानो एक वो दिखाई दे रहा था, एक छाया था। Melchizedek, he doesn't have any origin. He is a very mysterious figure in the Bible. तो हम नहीं जानते कि मलकीसदिक जो इसके आगे पीछे इसकी कहानी नहीं जानते कि कहाँ से आया है, उसके विषय में उसका एक अद्भुत है। Nobody knows about his human origin. उसका जन्म कैसे और कहाँ से आया उसके बारे में किसी को नहीं पता। So Jesus is our great high priest in heaven in the order of Melchizedek. अब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा कहता है याजक है, जो कि जगह पे मलकीसदिक के रूप में। हालेलुया, आमेन, Amen. आमेन। And Melchizedek, the first time the Holy Communion, he ministered to Abraham. आपको पता है कि कहता है मलकीसदिक जो पहली बार जो है कहता है कि अब्राहम को जो है प्रभुभोज को दिया है। He ministered to him bread. Hallelujah. और मलकीसदिक ने क्या किया? रोटी को लाया And oil. Hallelujah. और उसके बाद में तेल को दिया है। Praise the Lord. प्रभु की जय हो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। That reality is in Christ. आप जानते हैं जिस समय जो मलकीसदिक ने किया अब्राहम के साथ में, वो जो है पूरा जो है यीशु मसीह के साथ होता है। Because Abraham is the father of all who believe. क्योंकि अब्राहम जो कहता है कि सभी का पिता है जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह को। Abraham is our representative. और अब्राहम जो हमारा प्रतिनिधि है वो, And Melchizedek stands for Jesus. और मलकीसदिक जो है यीशु मसीह के बदले में है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की जय हो। If in the Psalm 133, अगर हम भजन संहिता 133 को हम देखते हैं, it says that, there is blessing, there is freshness, there is life. वो में कहता है कि जब कहता हम देखते हैं कि आशीष को बोला गया है, तो ताजा के विषय में बोला गया है, जीवन के विषय में बोला है। How much more in the church of God? सोचिए इससे कितना ज्यादा जो है परमेश्वर की कलीसिया में है। In the better covenant, in the better priesthood. क्योंकि हम जानते कहता है अच्छा वाचा जो है अच्छा याजक के साथ में हुआ है, Everything is better. सब कुछ अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की जय हो। This psalm can be applied to Christ, अब जानते हैं ये वजन जो है कहता है यीशु मसीह के साथ हम जोड़ सकते हैं। the great high priest. सबसे बड़ा याजक। Hebrews 4:14 says he's the great high priest. और इब्रानी किताब 4:14 में ये कहता है यीशु मसीह सबसे बड़ा याजक है। Another important thing here. और जगह में और एक मुख्य बात को हम देखते हैं, He is the great high priest. वो कहता महान याजक है वो, And we his body, we are also a holy priesthood. और हम और आप जो कहता है उसका शरीर का हिस्सा है, और हम भी पवित्र याजक है, और उसके कहता उसका पवित्र याजक हम भी कहता एक हिस्सा है। The church. कलीसिया 1 Peter 2:5, it says we are a holy priesthood. पहला पद 2:5 में कहता हम पवित्र याजक है। In the old covenant, not everyone is priest. पुराना नियम में हम देखते हैं तो उसमें सबके सबको या कहता पवित्र याजक नहीं बोला गया। But church, we are a holy priesthood. लेकिन कलीसिया अभी जो है कलीसिया जो कहता है पवित्र कहता याजक का याजक है। Christ is the head of the church. और यीशु मसीह जो है कलीसिया का सर है। You talk about universal church, you talk about local church, he is the head.
और आप कहता है कि लोकल चर्च के बारे में बात करते, स्थानीय कलीसिया के बारे में करते, या सारा विश्व में फैला हुआ कलीसिया के बारे में बात करते, यीशु मसीह सर है। Our great high priest, हमारा सबसे बड़ा याजक, before he went to the cross at Calvary, और क्रूस पे चढ़ाया जाने से पहले, before he went to the cross of Calvary, कहता क्रूस पर चढ़ाया जाने से पहले, in John chapter 17, यूहन्ना किताब 17 अध्याय, he prays for that unity. कहता प्रभु को महिमा दे रहा था कि उस एकता के लिए, You know, he prays for the unity that is already in the Godhead. कहता कि प्रभु परमेश्वर में जो एकता उस एकता के लिए प्रभु को जय जयकार कर रहा था। You know that they shall be one as you and I we are one. उसने कहा कि हे पिता, जैसे तू और मैं हम एक हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की जय हो। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। You see, if the elders, deacons, deaconesses, all workers in the church, और आप जबकि देखते हैं कलीसिया में जितना एल्डर है, डिकन डिकनेस है, if we don't flow together in unity, अगर हम कलीसिया में एकता में होकर हम इसको नहीं चल पाते हैं, it will be difficult for the flock to do so. तो ये कहता है कि कलीसिया के विश्वासियों के लिए तकलीफ होगा कि वो भी हमारे पीछे चले। That's why this one partaking from the table talking about unity is important for leaders. इसी कारण जो कहता है प्रभु वो जो इस बात को दर्शाता है, जो कि हम सभी लीडर जो है एक एकता को दर्शाता है। If we flow together in unity, अगर हम एकता में कहता है हम चल पड़ते हैं, then it's easier for the flock also to flow in unity. तो फिर तो कहता है विश्वासियों के लिए भी आसान होगा एकता में शामिल होने के लिए। Let us not spoil this wonderful unity. चलिए कहता है इस एकता को हम कहता तोड़ने नहीं देंगे। Each one of us are responsible हम में से हर एक जन जो है जिम्मेदारी है हमारा, to one another. We are responsible to one another. एक We दूसरे will have to flow together in unity. इसी कारण एक दूसरे के लिए हमारा जिम्मेदारी है ताकि हम एकता में होकर चले, Then we will get blessing, freshness and life. तब जाकर हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे, हम तरोताजा होंगे और जीवन को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We will see few things in John chapter 17. और यूहन्ना का 17 अध्याय में कुछ बातों को हम देखेंगे, But just to emphasize about that one church, और केवल उस एक कलीसिया के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं मैं। you know, I said earlier, Jesus says, on this rock I will build my church. जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि यीशु ने कहा मैं इस चट्टान के ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, And the gates of hell shall not prevail against it. ताकि नरक का फाकट जो है नरक का द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। That is Matthew 16:18. जो कि 16 का 18 में कहता है मत्ती की किताब में। And when Peter preached on the day of Pentecost, और जबकि जिस समय कहता है पतरस ने प्रचार किया पंतकस के दिन में, the Bible says that believers were added to the church. और बाइबल ये कहता है कि विश्वासी लोग कलीसिया में जोड़ दिया गया। That is also singular. उस समय कहता है कि एक वचन को कहता है ये। Hallelujah. हालेलुया। Amen. There was a time in Acts, it says that great fear fell on the church. कहता है ऐसा समय था जो कि कलीसिया जो पूरी तरह से भरपूर था। That is in Acts chapter 5 verse 11. आप देखेंगे कहता है प्रीति किताब कहता है 5 का 11 में। You know, and then if you go to chapter 8 of the book of Acts, persecution came against the church. उसके बाद आप ये देखना कि कलीसिया में किस तरह से ताड़ना आने लगा, सतावट आने लगा। That is also singular. वो भी कहता है एक वचन को दर्शाता है। When the Bible says Saul made havoc on the church. कहता है सोल के द्वारा जो कलीसिया में इतना ज्यादा कहता है डर पैदा कर दिया That गया। also same in chapter 8. और वो भी कहता है प्रेरित किताब 8 अध्याय में आप देख That पाओगे, is also singular. वो भी कहता है एक वचन है। And then when we go to Acts chapter 9:31, और जबकि वो प्रेरित किताब 9 का 31 को आप देखते हो, the Bible says because of the Holy Spirit, peace. There was peace throughout the church. और जबकि पवित्र आत्मा उतर आया तो कहता है लोग कलीसिया में कहता है परमेश्वर का शांति भरपूर होने लगा। It's all singular. ये भी कहता है कि एक वचन को दर्शाता है। Christ is the head of the church. मैं ये कहना चाहता हूँ कहता है कलीसिया जो है कलीसिया का सर जो है यीशु मसीह है। There may be local churches everywhere. कहता है इसका मतलब ये कि कलीसिया जो स्थानीय कलीसिया लोकल चर्च बहुत जगहों में है। That is a replica of the true church of Jesus Christ. ये जो कहता है कि सच्चा यीशु मसीह का कलीसिया को दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया। So in this John chapter 17, और यूहन्ना किताब 17 अध्याय को आप देखते हैं, which we will dwell for some time. कुछ समय के लिए हम इसको देखेंगे। हम Maybe if you can project the screen, John 17. It'll be faster. John chapter 17.
यूहन्ना किताब 17 अध्याय। Jesus prayed for the church, यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, not the world. संसार के लिए नहीं। His prayer definitely must be answered हाँ, हम जानते हैं कि उसका प्रार्थना का जवाब भी मिला है, before he comes the second time. और हम जानते हैं कि तो दोबारा आने से पहले। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। He prays for the church that is a body in unity but has many members. और यीशु मसीह ने उस कलीसिया के लिए प्रेयर किया जो कि कलीसिया में बहुत सारे कहता है कि अंग है, जबकि है ना वो कलीसिया एक कलीसिया के विषय में है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की जय हो। I believe God, Jesus knew beforehand. मैं विश्वास करता यीशु मसीह को पहले से ही पता था, That's why he prayed in advance. इसी कारण पहले से यीशु मसीह ने प्रेयर किया है। He knew that in the church age, और यीशु मसीह को पता था कि कलीसिया के समय में there would be division. ऐसा समय आएगा कलीसिया तितर बितर हो जाएगा, विभाजन होगा, There will be heresies. उनमें बहुत प्रकार का कहता है उनका विभाजन होगा, तकलीफ होगा। And things like that what we are seeing today. और जो आज के दिन में हम कलीसिया में देखते हैं, विभाजन को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं। But he prayed that the church will be one. लेकिन यीशु ने प्रेयर किया, प्रार्थना की, प्रभु कलीसिया एकता में बना रहे। I know because Jesus prayed, it will be answered. मुझे पता है कि यीशु ने प्रार्थना किया तो Hallelujah. परमेश्वर पिता जवाब देगा। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The church is to be a one church. कलीसिया जो है एक होना चाहिए, एकता का कलीसिया होना चाहिए। It's a kind of unity that can come only from God. वो इस प्रकार का एकता जो है केवल परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। It cannot be a man-made unity कोई भी इंसान अगर कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा, or imposed by man. या किसी के द्वारा भी नहीं हो सकता। In this church age, they have tried to impose that. कलीसिया में कहता है कि कलीसिया के समय में जो है ना कोशिश भी किया था करने के लिए, लाने के लिए And एकता। history says that there was persecution. The so-called church persecuted the other believers. और इतिहास हमें ये बताता है कि उस समय कहता है बहुत प्रकार का ताड़ना और कहता है उनको सतावट का सामना करना पड़ा, Because they are trying for a man-made unity. क्योंकि इंसान के द्वारा कोशिश किया गया था ताकि कलीसिया में एकता लाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। But Jesus speaks about the unity of the church, लेकिन यीशु मसीह जगह पे कहता है कलीसिया के एकता के विषय में कहता है, which is from the Spirit of God. जो परमेश्वर के आत्मा से है। Hallelujah. Hallelujah. So in this John 17, because of time, let us see together verse 11 first. चलिए हम देखेंगे यूहन्ना किताब 17 अध्याय का 11 से लेकर 17 verse 11. 17 अध्याय का 11 से हम देखेंगे हम। I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I'm coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, that the name you gave me, so that they may be one as we are one. ये यीशु ये कहता है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनको रक्षा कर कि वो हमारे समान एक हो। This kind of unity, और इस प्रकार का एकता he prayed 4 times. 4 बार यीशु ने प्रार्थना किया। He prayed also in verse 21, और 21 पद में भी देखना प्रेयर किया यीशु ने, in verse 22, और 22 में भी देखना, in verse 23. और 23 पद में भी आप देखना। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। 4 times he prayed that we might be one as they are one. तो यीशु ने 4 बार प्रार्थना किया एकता के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Humanly it sounds impossible how we can be in unity. और इंसानी सोच के साथ इंसान अगर कोशिश भी करे, कहता है कि नामुमकिन है कि कलीसिया में एकता आए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Humanly speaking, it sounds difficult. कहता करके इंसानी सोच के साथ देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। You see so much in this present church world. जबकि इन दिनों में आप कलीसिया के बारे में आप सुनते हो, देखते भी हो। But He is a God, nothing's impossible with Him. और हमारा परमेश्वर जो है कहता है वो परमेश्वर है, प्रभु है, और उसके लिए कोई भी काम जो है कहता है कि कठिन नहीं है। He is a God who count things that are not as though they were. वो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चीज नहीं है उसको भी कहता है के समान गिनता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन।
That's how faith also is grown in our lives. उसी तरह से हमारा विश्वास भी जो है कहता है कि बढ़ना चाहिए। He count things that are not as though they were. और हमारा परमेश्वर ऐसा गिनता, जो चीज नहीं भी है उसको हाँ के समान गिनता है। Praise the Lord. प्रभु की जय हो। You know, Jesus in this prayer, और यीशु ने इस जगह पे जो प्रार्थना किया है, he shows 4 things इस जगह में 4 चीजों को दिखाता है that are necessary for the church to become one. तो कहा कि कलीसिया में इन बातों का होना जरूरी है ताकि कलीसिया एक हो सके। 4 things Christ gave to the church that they might be one. प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में इन 4 बातों को दिया है ताकि कलीसिया जो है एक हो सके। Okay, you can show verse 4. चौथा वचन को हम देख सकते हैं अभी। Sorry, verse 6, 17 verse 6. 17 अध्याय का 6ठा वचन, verse 6. Yes. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me and they have obeyed your word. मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। Okay, let's go to verse 12. चलिए 12 वचन को हम देखेंगे इस समय। 17 का 12। While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that scripture would be fulfilled. जब मैं उनके साथ था तो मैं तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनको रक्षा की। मैंने उनको चौकसी की और विनाश का पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। They'll be kept one by the name that you gave me. ताकि वो लोग एक हो सके जो नाम प्रभु ने दिया है। What is that name? वो नाम क्या है? The Lord Jesus Christ. वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। You know, in Ephesians chapter 3, verse 14, 15, if you read the King James Version, it says very clearly, you know, that is our family name. अब जानते हैं इफिसी किताब 3 अध्याय का 13-14 में देखेंगे, उस जगह में आप कहता है कि एक परिवार के नाम के समान दिया है। That is the uniting name of the church of Jesus Christ. और यीशु मसीह का कलीसिया का जो एकता का नाम है वो नाम। No other name but only that name. और दूसरा कोई नाम नहीं बल्कि एक नाम है वो। For identity and for official purpose we can have so many names, but actually our name, the name of the church, He has given us that name for unity, the name of Jesus Christ. अब जानते हैं हाँ कहता है कि अपना अपना पहचान के लिए बहुत सारा अलग नाम तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहता है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का जो नाम है वो यीशु मसीह का नाम है। Hallelujah. हालेलुया। He is the one we should proclaim. इसी कारण केवल उसी एकमात्र नाम है जिसको हम कहते हैं ऐलान करना चाहिए। You know, any local church in this world who proclaim that name. अब जानते कहता है कि है ना जो कलीसिया के नाम को केवल वो नाम को हम ऐलान कर सकते हैं। We can identify. हम अपने आप को परिचय दे सकते हैं। There can be unity only in the name of God, the name of Jesus. और इस बात को हम जानते हैं कहता है कलीसिया में केवल तभी जाकर एकता होगा जिस समय यीशु मसीह के नाम को हम ऐलान करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's focus in verse 8. चलिए हम 8वां वचन को हम देखें, वर्ष 1 को हम देखें। First thing is the name of Jesus. हम देखें पहला नाम क्या नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। Let's see verse 8. और 8 वचन को हम देखते इस समय। For I have given unto them the words that you gave me. जब मैं कहता है क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उनको उन तक पहुंचा दिए हैं। And they have received them. Hallelujah. और उन्होंने उनको ग्रहण किया। You know, we don't get tired to listen to the words of God. और आप जानते हैं हम परमेश्वर को वचन सुनने से हम कहता है हम थक नहीं जाते हम। Jesus says you are clean by the words that I speak to you. और यीशु ने कहा कि क्योंकि आप इसलिए कहता है साफ सुथरा है कि जो वचन मैं कहता उस वचन के कारण। And they have just keep it there, okay? They have known surely that I came out from thee, and they have believed that you have sent me. और ये मैं कहता और सच तो जान लिया है और कि मैं तेरा और तेरे ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। You know, for those who write down, you can write also in verse 14,
verse 14, verse 17, 19, 20, it speaks the same thing. और जो नोट्स लेकर आप लिख सकता है 14, 16, 17, 19 भी एक ही वचन को कहता है, एक ही बात को कहता है। We need the word of God to come to the unity of the faith. हमें परमेश्वर का वचन को चाहिए अगर हम विश्वास में एक होना चाहते हैं। You know, fivefold ministry is also for that. आप जानते हैं 5 पद का कलीसिया भी एक इसके लिए ही है, To bring the revelation of the word that brings unity to the church. ताकि परमेश्वर का वचन का प्रकाशन लाए और कलीसिया में एकता लाए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। By the word of God and the revelation of the Spirit. परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Okay, let's go to the third. और तीसरे विषय में हम देखेंगे हम Unity in the name, unity in the word of God. और कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकता और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा एकता। Okay, let's see in verse 4. Verse 4, 17:4. यूहन्ना की किताब 17 अध्याय का 4था वचन। Okay, you should screen in NIV. I'll read from here. It says, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. मैं कहता जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे मैंने पूरा किया है। Hallelujah. Amen. आमेन। And verse 5 it says, and now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world began. और जगह पे कहता है पूरा करके मैंने तुझे पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 5 में कहता अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। And you see in verse 10, verse 22 and verse 24, अगर 10 पद को देखते हैं इसके बाद 20 और 24 को भी आप he देखते also हैं, says about the glory that the Father gave him, he gave to us. ये कहता है कि जो महिमा परमेश्वर ने यीशु को दिया है वो यीशु ने हमें दिया है। There can only be unity in the glory of God. अब जब क्या कहता है कलीसिया में एकता होगा तभी जाकर परमेश्वर की महिमा होगा, Not in any man's glory. नहीं तो दूसरा किसी प्रकार से महिमा नहीं हो सकता। God is glorious in whatever he does. आप जानते हैं जो कुछ परमेश्वर करता हो परमेश्वर महिमामय परमेश्वर हैं The true and living God. और सच्चा और जीवित परमेश्वर हैं। Hallelujah. हालेलुया। So that is the third thing Jesus gave. और तीसरा चीज जो यीशु ने दिया है, The name, the word and the glory. और यीशु ने जो दिया है नाम महिमा। Let's go to the fourth one. और चलिए हम चौथा चीज को हम देखें। We can see in verse 23. 23 वचन को हम देखेंगे 17 का 23। I in them and you in me, so that I may be brought to complete unity or perfect unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. मैं कहता है मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तुमने मुझसे प्रेम रखा वैसा उनसे भी प्रेम रखा। And we see this truth also in verse 24 and in verse 26. और ये सच्चाई को God is love. और इस सच्चाई को हम देखते हैं 24 और 26 वचन में कि प्रभु प्रेमी है। You know, Pastor Calvin in the morning, he talks about that. और आज सुबह के समय पास्टर कल्विन जो इस विषय में कह रहे थे, You know, to abide in love. उसलिए वो सिखा रहे थे कि प्रेम में बना रहने के लिए, God is love. क्योंकि प्रभु जो है प्रेमी है। Amen. There can only be unity in the love of God. तभी जाकर कलीसिया में एकता होगा जब हम कहता है कि प्रभु का प्रेम में हम बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। He has given us 4 important things. यीशु ने हमें 4 महत्वपूर्ण बातों को दिया है। The name of God, सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम, the word of God, प्रभु परमेश्वर का वचन, the glory of God, प्रभु की महिमा and the love of God. और प्रभु का प्रेम। Nothing can frustrate that. और उसके अलावा और कुछ नहीं। Let's give God the glory. चलिए हम प्रभु को महिमा दें। Amen. Whatever people say, जो कुछ लोग कहें,
When the Lord Jesus comes, He will have this church. और जब यीशु आएगा, यीशु के पास इस प्रकार का कलीसिया होगा। Let us be true to this unity. चलिए कहता है इस एकता में हम सच्चाई के साथ बना रहें। Let us thirst for this unity. चलिए कहता है कि कहता है एकता के लिए चाहत रहे। This kind of unity is God's will. ये इस प्रकार का एकता जो परमेश्वर का इच्छा है। We can dwell together in unity. हम कहता है एकता में इकट्ठा हम चल सकते हैं। And freshness and blessing and life will flow. मैं कहना चाहता हूं जब हम इस प्रकार के एकता में चलेंगे हम तरोताजा होंगे, जीवन पाएंगे और प्रभु की महिमा भी होगा। This is the idea of church, the church that Jesus died for. और इस प्रकार के कलीसिया के लिए यीशु मसीह मारा गया। Amen. आमीन। His prayer will be answered. और उसका प्रार्थना का जवाब मिलेगा। Praise the Lord. प्रभु की जय हो। You know, in the Bible, आप जानते हैं बाइबल में you will find that आपको मिलेगा। there is always a word which I like to share, is that the word of one another. उसमें कहता है एक वचन कहता है कि हमेशा के एक दूसरे के विषय में। Jesus says, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, love one another. और यीशु ये कहता है मैं तुम्हें नया आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Forgive one another. एक दूसरे को माफ करना है, Bear with one another. एक दूसरे को सह लेना है, Accept one another. एक दूसरे को अपनाना है, Honor one another. एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे का आदर करना है। So wonderful. ये अद्भुत बात है, So pure. इतना अद्भुत है ये। Amen. आमीन। You know, as a Christian, एक मसीह होने के नाते we may do many things alone, हम काफी बार जो अकेला अकेला बहुत कुछ हम करते हैं, but we cannot grow in our full potential. आप जानते हैं अकेला अकेला रहेंगे तो आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे जहां प्रभु चाहता है। If we don't have this one another relationship and brushing, और एक दूसरे के साथ में मिलकर नहीं चलोगे, एक दूसरे के साथ में होकर नहीं चलोगे, we cannot have the full experience. हम तब तो फिर प्रभु को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे हम। You know, I cannot grow to my full potential if I'm alone. अगर मैं अकेला अकेला चलता हूं, मैं कभी भी कहता हूं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, उस जगह पर नहीं पहुंच पाऊंगा जहां प्रभु चाहता है। Let me tell you about my life. चलिए मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। Up to the age of 21, 21 साल की उम्र तक I was basically a loner. मैं उस समय में अकेला अकेला रहता था। You know, I was always in my own world. हमेशा मैं अपनी दुनिया में रहता था। I don't have any relationship, hardly any relationship with people. मुझे ज्यादातर लोगों के साथ मेरे किसी प्रकार का संबंध नहीं था, That because of my ill health. क्योंकि मैं बीमार रहता था। The only friend for me is my mother. उस समय मेरा केवल एक ही दोस्त था, वो मेरे माँ। You know, sometime after coming back from school, कभी काफी समय ऐसा होता है स्कूल से आने के बाद, and when my mother comes late, जब कभी बार जो माँ जो लेट आती थी, I used to be so worried. उस समय मैं बहुत ज्यादा मैं डर जाता था। You know, if she dies, if something happened to her, and if she dies, my life is gone. मैं ये सोचता था कि अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाता या मर जाती तो मेरा जीवन खत्म। I was basically a loner. उस समय मैं अकेला अकेला रहता था। But when I was born again, जिस समय मेरा दोबारा जन्म हुआ, see, before that, I had, even my uncles used to tell me, why you are always by yourself? उस समय कहता है कि दोबारा जन्म होने से पहले मेरा अंकल भी ये कहते क्यों आप इस तरह से रहते हो, They said, this will not do. ये इस तरह सही नहीं है, You will become abnormal. कहते तुम इस तरह से और ज्यादा क्या अस्वस्थ हो जाओगे और बीमार पड़ जाओगे तुम। But my mother knows me. लेकिन मेरी माँ मेरे बारे में जानती थी वो, Because of all this suffering and ill health, और जिस तरह मेरा तबीयत है, जो मेरा तबीयत बिगड़ा रहता था हमेशा, I was totally dependent on her. इसी कारण मैं पूरी तरह से मेरे माँ के ऊपर निर्भर रहता था। But praise God, प्रभु की जय हो। when I was born again, जिस समय मेरा दोबारा जन्म हुआ, I was in a small fellowship in the engineering college in the university. उस समय मेरा छोटा सा फेलोशिप शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी में। That was the first time I experienced as a believer तो उस समय कहता बिलीवर होने का, विश्वासी होने का पहला अनुभव मैंने किया है। that I need one another. उससे मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक दूसरे को चाहिए। My mentor became a very good friend of me. उससे मेरा जो कहता आत्मिक पिता था, मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त बन गया। He was one of the professors in my college. और मेरा कहता कॉलेज का जो प्रोफेसर थे, You know, he was my mentor. I became his disciple. तो उसके बाद मैं उसका चेला बन गया। And then I enjoyed the blessing of the believers in that fellowship. तो उस फेलोशिप में क्या गया, उस संगति में क्या हुआ, मैं कहता है कि मैं विश्वासी होने का आशीष को प्राप्त करने लगा। I learned so much. I still owe to them, you know, the love and care that they gave me. अभी भी सचमुच में उनका प्रेम का आभारी हूँ, जो प्रेम उन्होंने मुझे दिया है। You know, when I was sick, they used to come and visit me. जब मैं बीमार रहता था वो आके मुझे देखभाल I करते। remember there was a time I was shocked because they all came
and they knew I couldn't eat, so they brought me soup from the restaurant. तो एक समय था जब कि मैं बिल्कुल कहता कमजोर हो चुका, तो खा नहीं पा रहा था, वो लोग जो के रेस्टोरेंट में से कुछ सूप लाए मेरे लिए। It means so much to me. कहता कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I learned the basics of Christian life. उसके बाद में कहता है कि उस कुछ बुनियादी बातें जानने लगा विश्वासियों का जीवन के विषय में। That I need other believers. हाँ, कहता मैं दूसरा विश्वासियों को चाहिए मेरे जीवन And में। they become such a source of joy to my life. उसके बाद वो विश्वासी, बाकी विश्वासी मेरे जीवन के लिए आनंद का एक जरिया बन गया। You know, Pastor Calvin was telling, believers, that is also a source of joy. आप जानते हैं, जैसे पास्टर कल्विन ये कह रहे थे कि विश्वासी जो है आनंद का जरिया है, आनंद का कारण है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Church, कलीसिया, we can only together we can achieve things. आप जानते हैं हम जब इकट्ठा होकर एकता में काम करेंगे, उस कामों को, उस जगह, उस मकाम को हासिल कर सकते हैं हम। You know, in the prophetic vision that late apostle gave to the church, आप जानते हैं, कहता है कि कुछ कहता है ऐसा दर्शन जो है भविष्यवक्ता जो दर्शन दिया है I कलीसिया को, still remember it very clearly. मुझे अभी भी याद है, पूरा साफ साफ याद है It मुझे। says to this church, in unity you shall overcome. ये बोला गया कि कहता कलीसिया जब एकता में होगा तभी जाके तुम कहता और कहता विजय को हासिल करोगे। But it's not unity at any cost, कहता ये इस प्रकार का एकता नहीं, कुछ भी कर on any ground. और किसी भी हाल में, It should be unity in the name of Jesus, लेकिन एकता होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में in the name of the Word of God, और यीशु मसीह के वचन में in the glory of God, और प्रभु की महिमा में and the love of God. और प्रभु की प्रेम में। Anything that is outside और इन that चार बातों के अलावा is not perfect unity. वो कहता सही एकता नहीं होगा। We want perfect unity. लेकिन हम कहता कि संपूर्ण वो चाहते हैं, एकता चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You see, in the Christian world, we see so many one-man ministry. आप देखते हैं कि कहता इस मसीह कहता जगत में बहुत सारे लोग जो है अकेले अकेले सेवकाई करते हैं। You know, sometimes God use when He gives the gifts and the calling of God, they are without repentance. और आप जानते हैं कहता परमेश्वर उनको वरदानों से भरा है और कहता उनको इस्तेमाल भी करता है। But in the long run, a one-man ministry, doesn't bear much fruit. हाँ, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता, वरदान से भरा है, लेकिन कहता उस लंबा समय के सेवकाई के लिए अकेला अकेला चलना जो है खतरा से खाली नहीं है। Oh, leaders in the church, मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया में जितने भी लीडर्स हैं, let's not get out of that mentality of one-man ministry. इसी कारण कहता है एक आदमी ही अकेला अकेला चलना, इस प्रकार का सोच जो हमारा दिल दिमाग से निकालना होगा। Some members of the church, they want to go by themselves here and there. आप जानते हैं कि कुछ लोग जो है अकेला अकेला ही सेवकाई करना चाहते हैं। They feel spiritual, allow me to go. वो कहते हैं कि कहता वो अपने आप को इतना आत्मिक समझते हो, कहता है मुझे अकेला अकेला जाने दो। Sometimes they ask also so that they want to operate as one-man ministry. Please allow us. काफी बार आके बोलते भी हमें जाने दो, क्योंकि अकेला अकेला हम काम करना चाहते, वो अपने आप को इतना ज्यादा आत्मिक समझते हैं। But that is not according to the Bible. लेकिन वो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं है। One-man ministry has so many limitations. आप जानते हैं एक इंसान का सेवकाई जो है कुछ हद तक के लिए कर सकता है, कुछ हद तक ही वो काम को कर सकता है। If the flock becomes very big, can he take care alone? आप जानते हैं जब कहता है बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगा, वो अकेला उससे संभाला नहीं जाएगा। Everyone has ministry, has gifts, and according to the measure that God gives. आप जानते हैं हर एक के जीवन में परमेश्वर ये कहता है कि अपने ही परिणाम, विश्वास के परिणाम के अनुसार वरदानों को दिया है। We are limited if we are alone. कि अगर हम अकेला अकेला काम करते हैं, हम कुछ हद तक ही कर पाएंगे हम। In terms of gifts of ministry, इसी के कहता है ये मिनिस्ट्री जो है कहता है केवल कुछ हद तक के लिए होगा। we see here in the last 3 sessions. हमने 3 सेशन में देखा है, We have seen that day 4 sessions. और चौथा सेशन में हमने देखा है We see the ministry of Presbyter Tojam, प्रेसबिटर तोजम के सेवकाई के बारे में हमने देखा है, Apostle, और अपोस्तल का भी, and Pastor Calvin. पास्टर कल्विन, Different gifts, है ना, कहता है अलग अलग वरदाने हैं, different ministry. अलग प्रकार का सेवकाई है। You can build a church that is balanced. कहता है हमें ऐसा कलीसिया चाहिए जहाँ में कहता है बैलेंस हो। Hallelujah. हालेलुया। One man is limited, even to get the mind of God alone is difficult. अब जानते हैं एक इंसान के सेवकाई के अकेला अकेला सेवकाई करना केवल कुछ हद तक ही वो काम कर पाएगा। Sometimes at home even I need my wife. My mind alone is not enough. क्योंकि मुझे I पता cannot have the whole mind of God. है ना, मुझे पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसी कारण कभी कभी मेरा कहता मुझे अपने पत्नी का भी साथ चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। So, not only my wife, sometimes even the children have grown up, now they have become very smart. Sometimes you have to understand what is in their mind also. है ना, कहता है क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो गए, इसी कारण उनको समझने के लिए भी आपको चाहिए। It will limit, if you are acting as a one-man ministry, it will limit
the growth of the church. अब जानते हो अगर एक इंसान के द्वारा केवल एक इंसान के द्वारा कलीसिया चलाया जाता है उसके उस कलीसिया का ग्रोथ जो है उन्नति जो है कुछ हद तक के लिए होगा। You can fail in knowledge, you can fail in wisdom, you can fail in judgment. कहता है बहुत जगह में आप नाकामयाब हो जाएगा, कहता है कि बुद्धि में, कहता है कामकाजों में आप नाकामयाब हो जाएगा। Amen. आमीन। Pastor Calvin, he gave in his teaching, he was telling about that man who did everything, whatever vision he got. कहता है कि पास्टर कैल्विन ने शिक्षा के दौर बताया उस इंसान के बारे में जो कहता है उनको जो अच्छा लगा उसके मुताबिक उसने किया। You know, he may miss, if he doesn't have the multitude of counselors, he may miss the timing, he may miss the process. किसी का जबकि वो बताया गया हाँ काफी बार अगर अकेला हम चलते हैं तो हो सकता है कि हम जो कहता है जो परमेश्वर चाहता है वो ना कर पाए, जैसे कि वो इंसान ने उसको चाहिए था कि और भी किसी के साथ सलाह ले। It's not so easy to shepherd a church. तो कहता है कि आसान नहीं कि कलीसिया को चरवाहे के रूप में सेवकाई करने के You लिए। know, it may break you mentally, physically, morally, it can break you. आपको पता है जबकि आप अकेला सेवकाई करेगा, अकेला ही सब कुछ आप चरवा है, और कहता है कि जब चलते तो काफी बार आपके जीवन में थकावट होगा, आत्मिक जीवन में थकावट होगा और आपको तोड़ डालेगा। You know, sometimes I feel that pressure and, I disturb apostle sometimes late at night, early in the morning. आपको पता है काफी बार मैं कहता अपोस्तल के बारे में सोचता हूँ क्या कितना ज्यादा समस्या, कितना ज्यादा प्रेशर होता है इनके जीवन में। I call Elder Gordon, I call Pastor One. और कभी कभी मैं जो अपोस्तल को फोन करता हूँ, कभी पास्टर वन को फोन करता हूँ, एल्डर गर्दन को मैं करता हूँ। You know, we need the support of one another. क्योंकि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। You know, if you are alone, then who will adjust you? Who will correct you? अगर आप अकेला ही चल पड़ रहे तो आपको कौन आपको कहता है कि सिखाएगा, कौन आपको करेक्ट करेगा, सुधारेगा? There will be no check and balance. आपको कोई सुधारने वाला नहीं होगा तो आप बैलेंस में नहीं रह पाएगा। That's why some ministries, one-man ministries, they end up becoming dictator. आप जानते हैं बहुत सारा कहता है ऐसा कलीसिया जो एक इंसान के द्वारा चलाया जाता है, उस इंसान के द्वारा, और वो इंसान जो पूरा कलीसिया को मतलब कलीसिया के ऊपर हुक्म चलाता है। You may be a worker, a leader in the church. हो सकता है कि आप कलीसिया का जो कहता प्रभु का काम करने वाला होगा, लीडर भी You है। may be so gifted. आप बहुत ज्यादा कहता अभिषेक है, आप बहुत ज्यादा वरदानों से भरा भी हैं। Believers will be impressed with your gift. आपके वरदानों के द्वारा विश्वासी बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हैं। You know, they may say, "Oh, you give me such good food. ऐसा वो कहेंगे आपने हमें इतना बढ़िया बढ़िया खाना दिया है, Oh, your food is very tasty." आपका खाना बहुत बढ़िया है। You should not be happy about that. लेकिन उतना में आप खुश नहीं होना चाहिए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Because the believers need the food from many ministries. आपको पता है in the church. विश्वासियों को जो कहता और भी तरह तरह का खाना चाहिए होगा कलीसिया में। Hallelujah. हालेलुया। So in short, one-man ministry is not really in the will of God. तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कहता है कि एक इंसान का सेवकाई के द्वारा जो है कलीसिया काफी संपूर्ण नहीं हो सकता। The church, in the Bible, the Bible teaches about plurality of leadership. आप जानते हैं कहता बाइबल जो कहता है बहुवचन के विषय में सिखाता है कलीसिया में, Together in unity. कहता है एकता के विषय में। In the Old Testament, Moses had elders with him. आप जानते हैं पुराने नियम में हम देखते हैं उस समय कहता मूसा के साथ बहुत सारा और भी एल्डर थे, प्राचीन थे, Joshua had elders with him. और जोशुआ के साथ भी एल्डर थे। Samuel, what a wonderful man of God. He still had elders with him. आपको पता है सामुएल जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके पास भी कहता है प्राचीन एल्डर थे। King David, the famous king, had elders with him. और दाऊद राजा इतना महान राजा उसके पास भी एल्डर थे, And he had even prophets to worship, to guide him. और उसके पास भविष्यवक्ता थे जो उसको गाइड करने के लिए, उसको दिशा दिखाने के लिए। The list is endless. कहता और भी बहुत सारा नाम है, Ezra, इज़रा के साथ Josiah, जोसेफ, Ezekiel. इज़िकियल। And when we come to the New Testament, अगर नया नियम को हम देखें, we see Peter and the elders, और पतरस और भी बहुत सारा प्राचीन लोग, James and the elders, और याकूब और भी एल्डर्स, Paul and the elders of Ephesus, और कहता है पौलुस और कहता है एफिसे के एल्डर्स लोग, Timothy and the elders, और तिमोथी और भी एल्डर, Titus and the elders. और तीतस के साथ और भी कहता है प्राचीन यानी कि एल्डर भी थे। In Philippians, there's a man, Epaphroditus, with the bishops and the deacons, आप देखे कहता फिलिपी में कहता और भी कहता कुछ बिशप भी थे और भी एल्डर्स लोग भी थे उसके साथ में, and many others like Priscilla, Aquila, Nympha. और उसके पास में और भी कहता है कि एल्डर्स लोगों का दल था उसके पास में। All these people, they work together as a team. ये सभी के सभी लोग जो कहता है एक दल के रूप में काम किया। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की जय हो। Amen. आमीन, Amen. आमीन। We work as a team.
हम एक दल के रूप में काम करते हैं, टीम के रूप में काम करते हैं। But the Bible also teaches that there should be a leader in the team. बाइबल हमें ये सिखाता है कि कहता है हाँ दल के ऊपर में या टीम के ऊपर में एक लीडर तो होना चाहिए। Amen. आमीन Amen. आमीन। What the Bible says about the set man. बाइबल कहता है कि एक जो नियुक्त किया होगा व्यक्ति, In the book of Numbers 27, verse 15 to 23, that idea of the set man, the first among equal, is mentioned there. आप देखेंगे कहता है गिनती की किताब कहता है ना, गिनती की किताब 23 में कहता है 15 से लेके आगे में आप देखना, Numbers 27. गिनती की किताब 27 है ना, 15 से लेके आगे देखना, 23 में देखना, उस जगह हमको जो गिना चुना लोगों के विषय में बोला गया है, जिसको अलग से चुना गया है। Hallelujah. हालेलुया। If the universal church as a head, और कहता है सारा विश्व में जो फैला हुआ कलीसिया जो है, we have a figurehead, the pastor in the local church. और हम देखते हैं कहता है सारा विश्व में कलीसिया है, और उसका कहता है कि लोकल चर्च में भी कहता है कि पास्टर जो है उसका एक लीडर है, The pastor is the chief elder, और कहता है कि पास्टर जो कहता है सबसे एल्डर में सबसे बड़ा है, and he operates together with the elders. और बाकी एल्डर लोग के साथ में मिलकर काम करते हैं कलीसिया में। Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। You know, we talk about a fivefold ministry. जबकि हम 5 पद की सेवकाई के विषय में बात करते हैं, Praise God that we are, in this present day truth, the fivefold ministry. हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कहता वर्तमान में जो हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई में हैं, One of the purpose of the fivefold ministry और 5 पद का सेवकाई का एक मुख्य कारण है is to bring the church to the unity of the faith, ताकि कलीसिया में जो है विश्वासियों का विश्वास में एकता लाने के लिए, unto the knowledge of the Son of God. ताकि परमेश्वर का पुत्र की पहचान में हो। Praise the Lord. प्रभु की जय हो। Hallelujah. हालेलुया। The church is to be one. इसी कारण कलीसिया जो है एक होना चाहिए। We may have leaders, different gifts that God has given. हाँ, हो सकता है हमारे पास में बहुत सारा लीडर है अलग अलग वरदानों के साथ में, God wants us to flow in unity. लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम एकता में बढ़े। That was the prayer of Jesus. ये यीशु मसीह का प्रार्थना है। Hallelujah. हालेलुया। So when Jesus instituted this communion, और मैं ये कहना चाहता हूँ यीशु मसीह जो है कहता है इसको शुरुआत किया, ये प्रभु भोज को शुरुआत किया है। one of the essence of this communion और आप कहता है ये प्रभु भोज का एक मुख्य उद्देश्य जो है is about our unity with the Lord and the unity with one another. और ये सबसे पहले इसका कारण ये भी है कि हमारा एकता परमेश्वर के साथ में और एकता एक दूसरे के साथ। This is not a ritual. ये केवल कहता है कि कुछ धार्मिक चीजें नहीं है, ऐसा कुछ कहता है कि This is हम not a ritual. ये कोई कहता है धर्म का कुछ काम को पूरा करे, ऐसे नहीं है। Some churches they practice this one as a ritual. और कुछ कलीसिया जो कहता है प्रभु भोज को जो कहता है कि एक क्रिश्चियन लोगों का एक रीति रिवाज के मुताबिक लेते हैं। If it is just a ritual, और मान लीजिए कहता है कि एक क्रिश्चियन लोगों का एक रीति रिवाज है, ये anyone can do. कोई भी कर सकता है। The one who ministers this one also may not be a believer also. बस कहता है जो इस काम को करेगा है ना, वो भी विश्वासी ना भी हो फिर भी कर सकता है अगर करना चाहता है। But it's not a ritual. लेकिन ये कहता है विश्वासियों का रीति रिवाज नहीं है। This table of the Lord, this is the second major ordinance in the church. अब जानते हैं ये जो प्रभु जो है परमेश्वर की ओर से मुख्य कहता है कि परमेश्वर ने रखा है इसको। So let's talk a few things about this one. चलिए कहते इस समय कुछ बातें हम करेंगे प्रभु भोज के विषय में, उसके शरीर के विषय में। The first ordinance, the first major ordinance is the water baptism. और अब जानते हैं कलीसिया में जो एक मुख्य शिक्षा ये भी है कहता सबसे पहला तो पानी का बपतिस्म। That happens only once after we were born again. वो एक बार होता है जब हम कहता दोबारा जन्म पाते हैं, After of repentance and faith in Christ. जिस समय हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, That is only once. वो एक बार होता है। But this is the ordinance which we observe again and again. और दूसरा ये है जो हम ये शिक्षा को हम देखते हैं जो कहता हम बार बार हम कर सकते हैं, जो प्रभु भोज है। As I said earlier, जैसे मैंने बोला है पहले, when Melchizedek, जिस समय मलकी सदीक ने he ministered the bread and the wine to Abraham, और जिस समय मलकी सदीक ने पहली बार जो कहता है अब्राहम को रोटी दी और दाखरस दिया, that is the shadow. In the Old Testament, the reality is this Holy Communion that we have. और आप जानते हैं उस समय जो मलकी सदीक ने कहता है अब्राहम को रोटी और दाखरस दिया, वो जो कहता है एक छाया था, और जो असल है जो यीशु मसीह ने ये प्रभु भोज के रूप में हमें दिया है। In the Old Testament, और पुराने नियम में in the ministry in the tabernacle, और जो कि मंदिर के टबरनेकल के अंदर में जो सेवकाई होता था, and later on the temple, बाद में जो कहता प्रभु का भवन बना,
we learn about the table of the showbread. उस जगह पे हम देखते हैं कहता है उस टेबल के विषय में देखते हैं हम We find that in Exodus 25, उसको हम निर्गमन की किताब 25 में हम देखते हैं verse 20, निर्गमन की किताब 25 का 20 the table of the showbread. उस जगह में कहता है कि टेबल में कहता है जो ब्रेड रखा गया था And then we see in the book of Leviticus, और लेवी व्यवस्था की किताब में chapter 24, from verse 5 to 9. 24 का 5 से लेकर 9 वचन तक There it talks about the drink offering. उस जगह में कहता है कि पीने के विषय में जो ऑफरिंग दिया गया या ऑफरिंग जो चलाया जाता है Together, भेंट। the table of the showbread and the drink offering point to the Holy Communion. उस जगह में कहता हम जो देखते कहता है ना कहता ब्रेड के बारे में इसके बाद में पीने के विषय में वो जो चीज जो है प्रभु भोज को दर्शाता है You know, the showbread is also called the bread of His presence. ये जो कहता ब्रेड जो रोटी जो है यीशु मसीह को दर्शाता है उसका उपस्थिति को दर्शाता है Or His presence bread. उसका जो कहता है कि उपस्थिति का रोटी Because of दर्शाता His है presence, that bread become fresh and it doesn't become corrupt. अब जानते हैं कहता उसकी उपस्थिति में जो है रोटी जो है ताजा रहता है कभी सड़ता नहीं Hallelujah. हालेलुया It is good for those who partake. इसी तरह अच्छा है जो लोग कहता उस प्रभु भोज में जो शामिल होते हैं When we take from this table, we will pray for His presence. और जिस समय आप कहता प्रभु भोज को हम लेते हैं उसके टेबल में हम आते हैं हम उसके उपस्थिति को हम लेते हैं It will be good for our spiritual health. वो अच्छा है कि हमारा आत्मिक स्वस्थ के लिए अच्छा है Those are the pictures in the Old Testament. ये सारा कहता है कि एक फोटो के एक चित्र के रूप में पुराना नियम में In the New Testament, और नया नियम में the feeding of the 5,000, 5,000 को खिलाना जो था that points to the breaking of bread, which the disciples did after the church was started. और आप जानते हैं 5,000 को लोग खिलाना जो था कहता कि ये वो रोटी तोड़ना था जो यीशु मसीह ने अपने चेलाओं के साथ में किया है And in John chapter 6, और यूहन्ना की किताब 6 अध्याय में Jesus elaborated about that He is the bread of life. और जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन का रोटी है From the feeding of the 5,000, जो कि 5,000 को खिलाया गया He expounded in chapter 6 और 6 में ये बोला है that He is the bread of life. वो जीवन का रोटी है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रभु की जय हो And we see in the Acts of the Apostles when the church has started, और हम देखते हैं कहता है प्रेरितों की किताब में जो कलीसिया में हम देखते हैं every first day of the week, कहता है कि सप्ताह के पहले दिन the believers broke bread. तो उस समय क्या करते हैं कि उस समय जो है विश्वासी जो रोटी तोड़ते हैं That was after Jesus was raised from the dead. जिस समय यीशु मसीह मरे हुए से जिलाया है Amen. आमीन Let me check the time. I still have plenty of time. I want to go slow because yesterday I created a lot of havoc for him. मैं थोड़ा धीरे धीरे जाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में Hallelujah. हालेलुया So for those for the benefit of the workers here, सभी हम जितने भी प्रभु के लोग हैं प्रभु के लीडर्स एक जगह पे when you minister the Holy Communion, जिस समय आप कहते हैं अपने अपने कलीसिया में प्रभु भोज को आप देते हो if you don't have understanding, अगर आपके पास में समझ ना हो don't minister Holy Communion. तो प्रभु भोज को नहीं देना आप First learn पहले आप सीख लो from those ministers who know how to minister the Holy Communion, और उनसे सीखिए जो लोग कहता है कि प्रभु भोज को देते हैं so that the believers can get the blessing of the Holy Communion. ताकि विश्वासियों लोगों के जीवन में आशीष आए प्रभु भोज के द्वारा This second major ordinance, और दूसरा जो मुख्य जो कहता है जो प्रभु ने दिया इस आज्ञा को usually there are 4 names they use. हम देखते हैं 4 नामों को इस्तेमाल किया गया है The Lord's Supper, प्रभु कहता है कि प्रभु भोज के विषय में प्रभु का जो हक कहता है कि that is 1 Corinthians 11:20. पहला करंथी किताब 11 का 20 में हम देख सकते प्रभु भोज के विषय में बोला गया जो It's यीशु also मसीह का था called the Lord's table. ये प्रभु भोज भी बोला जाता है 1 Corinthians 10:21. पहला करंथी किताब 10 का 21 It's also called the communion. ये जो कहता है एक प्रकार का कम्युनियन बोला गया है एक प्रकार का संगति बोला गया है In 1 Corinthians chapter 10 verse 16 in the King James version. पहला करंथी किताब 10 का 16 In the NIV it says participation.
Same thing, but communion is a stronger word. तो ये में कहता है कि एक होकर कहता है कि उस जगह में एक प्रकार का वो संगति बीच में संगति बोला गया It's है। called the Lord's Supper, the Lord's table, the communion. यीशु मसीह के कहता है कि उसके सफरिंग के विषय में या उसका जिस तरह से वो कहता उस पीड़ा से होकर गुजरा और उसका शरीर के बीच में तोड़ा जाना, उसका शरीर जो तोड़ा गया, उसका लहू जो बहाया गया, उस विषय में कहता And है। we also call sacrament ये कहता है पवित्र भोज भी बोला जाता है, because it's a sacred thing. Sometimes we call the sacrament. क्योंकि ये जो कहता है पवित्र भोज है, क्योंकि ये कहता है कि पवित्र है। You know, when did it start? ये कब शुरुआत हुआ है? It was started by Jesus. ये किसने शुरुआत किया है? यीशु मसीह के द्वारा। In the final Passover that he took, the Passover feast, before he went to the cross. अब जानते हैं यीशु मसीह जो है कहता है छुटकारा का पर्व में जिसमें था, उस छुटकारा के पर्व में ये शुरुआत किया यीशु मसीह ने प्रभु भोज को। He turned the Passover feast वो जो छुटकारा का पर्व था to this Holy Communion or the Lord's Supper. और उसको कहता है कि प्रभु भोज में कहता है प्रभु भोज में किया है। That was in Matthew 26, verse 26 to 29. मत्ती किताब 26 है, कहता है 26 से लेकर 29 में आप देख सकते हैं। And later on we see Apostle Paul got a revelation from God. और बाद में हम देखते हैं कि अपोस्तल पौल जो था उसको परमेश्वर से एक प्रकाशन मिला। We see that in 1 Corinthians 11:23. उसको हम देखते हैं onwards, पहला कुरिन्थी किताब 11 अध्याय का 23 से आगे हम देखते हैं। when Paul said to the Corinthians, that which I receive from the Lord, I give to you. पौलुस ये कहता है जो मैंने प्रभु से पाया मैं आपको देता हूँ। For I received from the Lord what I also pass on to you. पौलुस ये कहता है जो मैंने प्रभु से पाया है मैं आपको भी देता हूँ। He got it by revelation. उसने प्रकाशन के द्वारा पाया है। He gives some insight into this ordinance. कहता है इसमें जो कुछ और भी कहता है प्रकाशन डाला है इसमें इस शिक्षा के ऊपर में। Praise the Lord. प्रभु की जय हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now we see in this table, और जबकि कहता है प्रभु भोज में हम देखते हैं you know, there are the symbols in this table. इस जगह में कुछ चीजों को इस्तेमाल किया गया है। All these symbols have their significance. और उसमें जितना भी चीजों को इस्तेमाल किया गया है उसमें अलग ही प्रकार का एक शिक्षा है उसमें। We have this wonderful table here. इस जगह में खूबसूरत टेबल तो है। Praise the Lord. प्रभु की जय हो। This is one symbol. ये भी एक प्रकार का कहता है चिन्ह है। You know, a table is always in the Bible is a place of love and fellowship. अब जानते हैं टेबल जो है बाइबल में बोला गया कि कहता संगति और प्रेम को दर्शाता है। It's a sharing and partaking together. कहता है कि एक दूसरे के साथ जो कहता मिल बांट के लेने के विषय में है। David says in Psalm 23 verse 5, he prepares a table before me in the presence of my enemies. और दाऊद ये कहता है भजन संहिता 23 का 5 में वो मेरी विरोधियों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। Wow, hallelujah. हालेलुया। The good shepherd prepared a table कहता अच्छा चरवा जो है कहता है कि एक टेबल को तैयार करता है for David. दाऊद के लिए भी। The good shepherd wants us this table. कहता ये है ना अच्छा चरवा जो ये टेबल हमारे A लिए तैयार place of किया, love and fellowship. वो ऐसा जगह बनाया जहाँ And पे हम sharing. प्रेम को दर्शाते हैं। And we see in the book of Revelation chapter 3 verse 20. आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां वचन में After the Spirit of the Lord speaks, you know, to the church in Laodicea to repent. और जिसे में लौदीकिया के कलीसिया को बोला गया है पश्चाताप करने के लिए, Because it was neither hot or cold. क्योंकि वो ना तो गर्म था ना तो ठंडा था। But he says after she repent, oh, if you open the door, I'll come in. उसमें बोला जब पश्चाताप किया अगर तू दरवाजा खोलता मैं अंदर आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। And eat with that person and they with me. कहता उसके साथ मैं खाऊंगा और मेरे साथ हो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. In this table, we also see the bread. इस जगह पे हम कहते हैं टेबल के ऊपर में क्या रोटी को हम देखते हैं। This bread represents the broken body of Jesus. ये रोटी जो है कहता है यीशु मसीह का तोड़ा गया घायल किया गया शरीर को Matthew दर्शाता 26 है। verse 26. मत्ती किताब 26 अध्याय का 26 से वचन। Matthew 26 verse 26. मत्ती किताब 26 का 26। You know, while they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to the disciples, saying, "Take, eat, this is my body." यीशु ने कहा जब वो खाए रहे थे उन्होंने कहा कि लो, हाँ यीशु ने रोटी को लिया तोड़ा कहा ये लो ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। You know, this
fulfills the Passover lamb. अब जानते हैं जिस समय यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर दिया, ये जो कहता है वो छुटकारा के पर्व में जो कहता है वो मेमना मारा गया, उस मेमना को It दर्शाता fulfills है। the body of the Passover lamb. अब जानते हैं उस मेमना जो कहता है पास या छुटकारा के समय में, पास ओवर के समय जो मेमना मारा गया, उस मेमना को दर्शाता है। That's why Paul says in 1 Corinthians 5:7, Christ your Passover lamb. इसी कारण पौलुस ये कहता है पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7वां वचन में, यीशु मसीह तुम्हारा कहता है छुटकारा का मेमना है। The church in the wilderness, they partook of that lamb. अब जानते हैं कहता है जंगल में जो कलीसिया था, उस कलीसिया ने कहता है इस मेमना का कहता है मेमना का हिस्सेदार बना। This bread also represents his body, और ये जो शरीर जो है, ये रोटी जो है यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता है, but it also it symbolizes the church, the body of Christ. और साथ ही साथ में जो यीशु मसीह का कलीसिया को दर्शाता है ये। You can see that in 1 Corinthians 10, आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय में 16, 17, 16, 17, even chapter 12, verse 12. 12 अध्याय का 12 वचन। This bread speaks about his broken body. It also speaks about the church, the body of Christ. ये जो शरीर जो है यीशु मसीह का घायल शरीर के बारे में दर्शाता है और कलीसिया के बारे में दर्शाता है। So we have, the table, the bread, and then we see here the wine, the wine. और जगह पे कहते हम रोटी हम देख सकते हैं, और उसके बाद में दाखरस भी जगह पे रखा गया है। It's not alcohol. ये जो दाखरस जो है कहता है किसी प्रकार का मदिरा या शराब नहीं है, It's the fruit of the vine. ये हम जानते हैं रस से एक। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। This represents his blood. ये जो है दाखरस जो है यीशु मसीह का शरीर के, यीशु मसीह के लहू को कहता है। We sang that song. जैसे कि हमने कुछ देर पहले गीत को गाया है, How precious is the flow. हम जानते हैं कहता वो कितना अद्भुत था वो बहना। Hallelujah. हालेलुया। This represents the blood of Jesus. ये जो दाखरस जो यीशु मसीह के लहू को कहता है, Without this, there is no remission of sin. और हम जानते हैं ये बिना लहू बहाए किसी का उद्धार नहीं हो सकता। The Bible says in Hebrew 9:22, without the blood, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. इब्रानी किताब 9 का 22 में ये कहता है कि बिना लहू बहाए किसी का कहता है कि किसी का पाप को क्षमा नहीं मिल सकता। We all stand before God on the ground of the blood. अब जानते हैं सभी लोग आज के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है, उसका कारण क्या है? वो यीशु मसीह के लहू के कारण है। There is no other ground हम जानते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। that we can stand boldly before God. हम प्रभु के आगे में पवित्रता के साथ हम बिना यीशु मसीह के लहू We के can लहू के stand काम boldly खड़ा नहीं हो पाएंगे। before Him because of the blood of Jesus. आज हम यीशु मसीह के सामने खड़ा है, वो यीशु मसीह के लहू के कारण है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And this blood is significant of the new covenant. आप जानते हैं ये लहू जो है यीशु मसीह का कहता उस नए करार के विषय, नया वाचा के बारे में कहता है। The covenant sealed by the precious blood of Jesus. वो वाचा जो यीशु मसीह ने किया है कलीसिया के साथ में, वो वाचा को यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोहर लगाया गया है। The sinless Lamb of God, और कहता वो परमेश्वर का मेमना जो बिना दाग का, बिना पाप का, who John the Baptist says, "Behold the Lamb of God, और who took away the sins of the world." जो कि यूहन्ना बपतिस्मा ये कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना आया है जिसने संसार के पाप को उठा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Workers, brothers and sisters in Christ, जितने भी हम परमेश्वर की कार्यकर्ता है जगह में है, लीडर्स लोग हैं, प्रभु में भाई बहने हैं, this is such a wonderful ordinance. अब जानते हैं परमेश्वर की ओर से कितना बढ़िया आज्ञा है परमेश्वर ने दिया है। God did everything from His side. अब जानते हैं परमेश्वर ने अपने ओर से सब कुछ कर दिया है। But when we come to this table, जिस समय हम प्रभु भोज में उसके आगे आते हैं, we should have the right attitude. हमारे पास में सही प्रकार का चरित्र होना चाहिए। This table is no magic. अब जानते हैं प्रभु भोज में जगह में दाखरस और रोटी रखा है, उसमें अपने आप में कोई चमत्कार नहीं It's है। based on the relationship that we have with God through Jesus Christ. अब जानते हैं हमारा रिश्ता जिस तरह से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में है, वो रिश्ता के द्वारा जो कुछ होना है होगा। When we come to this table in a proper way, और जबकि हम सही सोच के साथ, सही समझ के साथ प्रभु भोज में हम आते हैं, we will receive blessing, life and health. अब जानते हैं जिस समय तब जाकर आपके जीवन में आशीष आएगा, जीवन आएगा, तंदुरुस्ती आएगा। Praise the Lord. प्रभु की जय हो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, when He broke bread, He gave thanks. जिस समय यीशु ने रोटी को तोड़ा उसने धन्यवाद कहा। We have to come to this table with an attitude of thanksgiving. जिस समय हम प्रभु भोज में हम आते हैं, हमारे अंदर में धन्यवाद का हृदय होना चाहिए। If you are not thankful to God, how can you come to this table? अगर आप प्रभु में धन्यवाद ही नहीं, जो कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है, तो आप कैसे प्रभु भोज में आप आ सकते हैं?
Hallelujah. हालेलुया। This is the one the Lord Jesus says, He commanded, do this in remembrance of me. और आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया है, कहता है कहता है ये करना है, जब जब तुम करते हो मेरे स्मरण में या मेरी याद में किया करो। Every time we do this, we remember Him. जब जब हम प्रभु भोज में आते हैं हम प्रभु को याद करते हैं। You know, we remember with a hope for the future. हम ये उसको याद करते हैं, हमारा भविष्य का आशा है वो। We proclaim His death till He comes. हम उसके कहता है इसको कुर्बानी के बारे में याद कर, उसको मृत्यु के बारे में प्रचार करते हैं जब तक वो नहीं आ जाता। Hallelujah. हालेलुया। That the living Christ is coming again. हम जानते हैं हमारा जीवित यीशु मसीह वो आएगा दोबारा। The Bible also says बाइबल भी हमें ये कहती है, you have an attitude of thanksgivings and remembrance. हमारे पास में धन्यवाद का हृदय होना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। We also have to have an attitude to discern the body and the blood. इसी कारण लेकिन हमें इस बात को कहता है परखना भी होगा कि यीशु मसीह का कहता है कि देह के विषय में और उसके शरीर लहू के विषय में, Physically and spiritually. हाँ जब उसको हम लेते हैं तो हमें कहता है अपना ध्यान रखना होगा, अपने परखना पड़ेगा आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में भी। To realize that, you know, this is a symbol that He gave His body for me. उस बात को याद करना होगा, ये रोटी जो यीशु मसीह को दर्शाता, यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता, ये दाखरस यीशु का लहू है। That I'm also part of the church, the kingdom of God. और उस समय इस बात को आप एहसास करते हैं, अपने आप को कहता है, इस बात को कहते हैं मैं प्रभु के उस राज्य का एक कहता मैं भी एक हिस्सा हूँ, सदस्य हूँ। The kingdom of God is a very big thing, but the church is a part of the kingdom of God. अब जानते हैं परमेश्वर के राज्य जो बहुत बड़ा बात है, लेकिन कलीसिया जो है कहता है हम और आप जो कलीसिया है परमेश्वर के उस राज्य का एक सदस्य है, आप और हम भी। Paul says in 1 Corinthians 11:28, पौलुस ये कहता है कि 1 कोरिन्थियों किताब 11 का 28 में, when we come to this table of the Lord, we should examine our hearts. पौलुस ये कहता है जब हम प्रभु के उस प्रभु भोज में आते हैं, उसमें आने से पहले, उसको लेने से पहले अपना अपना हृदय को हमें जांचना होगा, परखना होगा। Do we have a good relationship with the Lord and with one another? क्या हमारे पास हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ अच्छा है? क्या हमारा संबंध प्रभु के साथ अच्छा है? या आपस में जो भाई बहनें हैं विश्वासियों के साथ अच्छा संबंध में हम है या नहीं? You know, do we have a right standing before God? क्या हम प्रभु के साथ में सही प्रकार, सही सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ हम खड़े हैं? Today when we partake from this table, you know, if you examine your heart and if you're not ready, please don't take. अगर आज के दिन जब हम प्रभु भोज को लेंगे, अपने हृदय को जांचिए, परखिए। अगर आपका हृदय आपको किसी प्रकार का दोषी नहीं ठहराता, आप प्रभु भोज ले सकते। आपका हृदय अगर दोष ठहराता है, आपको दोषी ठहराता है, तो आप प्रभु भोज को मत लीजिएगा। If you have any unconfessed sin that you know you have not confessed before God, please do that first. अगर आप कहता कोई भी पाप जो आप तक अपने अंगीकार नहीं किया, प्रभु के आगे आके माफी नहीं मांगा है, तो आप सबसे पहले प्रभु से माफी मांगिए अपने जीवन में, ताकि प्रभु आपको माफ करे, यीशु के लहू आपको धोए। If you have you are not in right relationship or you hate any brother or sister, you have to reconcile first. अगर आप किसी भाई बहनों को नफरत करते हैं, इसको माफियाता है, तो फिर तो जरूरी है सबसे पहले माफी मांगे, उसके साथ अपना रिश्ता सही कीजिए। To forgive the way the Lord forgive you. एक दूसरे को माफ कीजिए जिस तरह प्रभु ने आपको माफ किया है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You know, in 1 Corinthians 10:17, let's read that one. 1 Corinthians chapter 10 verse 17. पहला कोरिन्थियों की किताब 10 का 17। Because there is one loaf, we who are many are one body, for we all share the one loaf. हमें कहता है कि इसलिए कि एक हो, रोटी तो एक ही है और बहुत है, एक ही देह है। एकता के विषय में कहता है, एक ही देह के विषय में कहता है, एक रोटी के विषय में। We come with that attitude that I am a member of that body. हम उस सोच के साथ आते हैं कि हमें भी उस शरीर का एक अंग हूँ This या एक bread सदस्य will break हूँ। into pieces. जिस समय ये रोटी को तोड़ा जाएगा, They come from one bread. वो जब टुकड़ा आपके पास में आएगा, उस एक टुकड़ा से आपके पास आता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। This calls for unity. ये जो है एकता को दर्शाता है। You know, attitude of unity in the body. प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के देह में जो है कहता है कि एकता का चरित्र होना, एकता का स्वभाव होना जरूरी है। This is the thing that, and in 1 Corinthians 11:33 it says, this is the thing that we only can do together. इसी कारण पहला कोरिन्थियों की किताब 11 का 33 में कहता है ये जरूरी है कि हम सब लोग इस तरह से करें। We partake together, wait for each other. तो हम जब इकट्ठा मिलके हम लेते हैं और एक दूसरे के लिए इंतजार करते हैं।
It's not that, you're in a hurry, you pick and then go to your own work. No. ये नहीं कि अब इतना जल्द आपको देर हो रहा है, अब कहता है रोटी का टुकड़ा ले आप चल दिया। We honor one another. We partake together, waiting for each other. एक दूसरे के इंतजार करेंगे, एक दूसरे को हम आदर करते हैं। Paul in the same text, he says that we have to do it worthily. और पौलुस ये कहता है कि हमें इसको कहता है आदर के साथ, सम्मान के साथ करना है। We have to do it worthily with an attitude that, that you are worthy for that, which means that you have to judge yourself. तो हमें बोला गया, पौलुस से कहता है हमें आदर के साथ करना चाहिए। इसका मतलब कि हमें अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा। You know yourself. क्योंकि आप अपने विषय में आप अपने आप को जानते हैं। You have to judge yourself so that you will not be judged. इसी कारण अपने आप को आप जांचिए, परखिए, ताकि आप कहता है आपको किसी प्रकार के आपके ऊपर में आपको समस्या आपके जीवन में ना हो। Because this table, क्योंकि ये जो प्रभु भोज है, if you do worthily, it will be a blessing to you. अगर आप कहता है सम्मान के साथ, कहता है आदर के साथ लेते हैं, आपके जीवन में आशीष को लाएगा। But if you don't do it worthily, it will not be a blessing to you. अगर कहता आदर के साथ आप नहीं करते तो क्या हो, आपके शरीर में किसी प्रकार का आशीष नहीं आ सकता। If you don't do it worthily, you will be judged. अगर कहता आप आदर के साथ नहीं करते तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको न्याय करे। So better we judge so that we will not be judged. इसी कारण अच्छा है कि परमेश्वर न्याय करे तो हम अपने आप को जांचे परखे, ताकि हम न्याय में ना पड़े। Hallelujah. हालेलुया। When I come to this table, जब मैं प्रभु भोज में आता हूँ, I have 3 looks. मेरे पास में 3 प्रकार का रोटी है। I look backward to Calvary मैं कहता उस क्रूस की ओर देखता हूँ, because there his body was broken for me. कहता है वो जगह पे जो यीशु मसीह का शरीर को तोड़ा गया मेरे लिए। But I also look to heaven now. अभी मैं जो स्वर्ग की ओर देखता हूँ, Our great high priest is there, हमारा महायाजक उस जगह पे है, interceding for me. जो आपके लिए और मेरे लिए कहता मध्यस्थी के प्रार्थना करता है। Hallelujah. हालेलुया। But also I look to the future. और कहता साथ ही साथ मैं भविष्य की ओर देखता हूँ, That one day he will come एक दिन वो आएगा and take all of us to be with him forever and ever in those mansions. तो एक दिन वो आएगा और आपको हम सबको जो उसके साथ ले जाएगा परमेश्वर के घर में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। After Jesus was raised from the dead, जिस समय यीशु मसीह कहता है मरे हुए से जिलाया गया, on the way to the small town Amos, एमोस की ओर था वो। the Bible says when those people, on the way, they didn't realize that he was Jesus. बाइबल ये कहता है कुछ लोगों को मालूम नहीं था कि वो यीशु है। But when they broke bread, जिस समय उनको उस रोटी को तोड़ा, when he broke bread, when जिस he समय gave रोटी को thanks, तोड़ा और धन्यवाद किया, their eyes were open. बाइबल कहता है कि उनके आत्मिक आंखें जो खोल गई। We come to this table with an attitude that I want to know my Jesus more and more. और उस समय उनके आंखें खोल गए और यीशु को पहचान पाए। उसी तरह आप और हम जो प्रभु भोज में आते हैं, हम इसको लेते हैं, हमारा आत्मिक आंखें खोल जाता है और हम यीशु को और अच्छी तरह से जानने लगते हैं, He will open my eyes that I will know him more and more. ताकि वो मेरा आत्मिक आंखों को खोले, ताकि उसको मैं और अच्छी तरह से जानने लगूं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। This is spiritual supper. ये मैं कह सकता हूँ कि ये आत्मिक जो है, आत्मिक भोज है ये। Hallelujah. हालेलुया। The Passover feast. कहता हम जानते हैं कि एक पासोवर कहता है कि छुटकारा का पर्व था, Points to the Lord's Supper. और ये जो है कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो कुछ भी यीशु ने किया, ये जो यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता है। And this Lord's Supper ये जो प्रभु का सेना या प्रभु भोज जो है, points to the marriage supper of the Lamb. ये जो प्रभु भोज जो है यीशु मसीह का उस विवाह के समय में जो उत्सव होगा, पार्टी होगा, उसके विषय में कहता है। That's why Jesus says, I will not take again from this इसी कारण यीशु ने कहा कि मैं दोबारा इससे नहीं लूंगा till I drink anew with you in the kingdom of my यीशु ने Father. कहा दोबारा मैं आपके साथ ये नहीं लूंगा जब तक कहता है मैं आप लोगों के साथ में जो नया कहता है जब तक नया करके आपको ना लूं। This is a better covenant. ये सबसे अच्छा वाचा है। One day एक दिन we will partake एक दिन जो है हम प्रभु का उस कहता है उस भोज में हम हिस्सेदार बनेंगे in the kingdom of God. परमेश्वर के घर में। Hallelujah. हालेलुया। Together, I don't know, we will see Abraham, we'll see others there. हाँ कहता है उस जगह पे हम सभी लोग मिलकर उस जगह में अब्राहम होगा और भी बहुत सारे लोग होगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Right eating, you get right life. अब जाता सही प्रकार का खाना जो है सही जीवन को देता है। Right eating, you get right life.
कहता है सही प्रकार से खाने से आप सही प्रकार का जीवन मिलता है। Wrong eating, you get death. कहता है गलत प्रकार का खाना खाने से आप मर जाते हो। Jesus, God warned Adam and Eve. आप जानते हैं परमेश्वर आदम और हवा को जो है परमेश्वर ने इसको कहता वार्निंग दिया था, Don't eat the one I say you should not eat. और प्रभु ने कहा था कि जो चीज को मैंने बोला नहीं खाने के लिए नहीं खाना है, Because the wrong eating, they died. क्योंकि गलत प्रकार का खाना खाने से वो मारे गए। The wages of sin is death. बाइबल कहता है कि पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है, But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. लेकिन कहता है परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। Right eating will give us life more and more. अब जानते हैं सही प्रकार के खाना खाने से हमारे जीवन में और ज्यादा हमारे जीवन को बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। You know, when we partake from the table of the Lord, जिस समय हम प्रभु भोज में हम आएंगे, we want to get healing, life, and strength. हम चाहते हैं कि हमें हमारे शरीर में चंगाई को आए, हमारे जीवन में कहता है तंदुरुस्ती आए, हमारे जीवन में हमारा जीवन जो तरोताजा हो। You know, it's not a ritual. ये जो कहता है किसी प्रकार का धार्मिक काम नहीं है। But in the Bible, you see, बाइबल हमसे ये कहता है God used things as a point of contact and faith. परमेश्वर चीजों को इस्तेमाल करता उन शिक्षाओं को देने के लिए, समझाने के लिए। He used the mantle of Elijah to open the Jordan. अब जानते हैं परमेश्वर ने एलिजा का कहता उस वस्त्र को इस्तेमाल किया यरदन नदी को भाग करने के लिए। He used the dead bones of Elisha to Ali- resurrect a person. एलिशा का जो कहता मरा हुआ हड्डी को इस्तेमाल किया किसी को जिलाने के लिए। There are so many examples like that. हम बहुत सारे उदाहरणों को देख सकते हैं बाइबल में से। Hallelujah. हालेलुया। 5 loaves and 2 fishes to feed the multitudes. अब जानते हैं कहता 5 रोटी 2 मछली जो कहता है कि बहुत सारे लोगों को खिलाया गया। So when we partake of the symbols in the right way, जिस समय हम प्रभु को कहता सही सोच के साथ हम लेते हैं, we'll get life, strength, and health. और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हम जीवन को प्राप्त करेंगे, तंदुरुस्ती को प्राप्त करेंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे हम। I've taken a long time. मैंने बहुत लंबा समय ले लिया। I don't know. I'm excited. I don't know whether you are excited or not. मुझे नहीं पता कि आप कितना ज्यादा खुश हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आनंदित हूँ। Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. आप जानते हैं धार्मिकता, प्रेम और शांति जो है परमेश्वर के राज्य का है, यही जो पवित्र आत्मा के द्वारा We होता do है। everything in the right way. We want the peace of God. We want the joy of God. ये सब कुछ हम सही प्रकार से करते हैं ताकि हम परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का आनंद को हम पाने के